क्या चाहते हैं? मैंने हमने एक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ था इस संबंध में कि हमें सैलरी के अगेंस्ट में 20 लाख रुपए एडवांस दे दिया जाए। सबसे पहली चीज मैं यहाँ बताना चाहूँ। धनुलाल जायसवाल, जी मैडम। दिस इज यू आर सीकिंग पेंशन। ऑल द बेनिफिट्स और ये सब। Start his pension and pay the difference of salary Yes, immediate madam. capitalization and pension with interest. लेकिन इसके संबंध में हमने एक रिप्रेजेंटेशन दिया था जिसको इन्होंने डिसाइड नहीं किया था। हाँ ठीक है। ठीक। सबसे पहले बताना चाहूँगा मैडम, हम जो है हमारे फेवर में एक अवार्ड हुआ था पेज नंबर 11 पे एनेक्सर P1। इसके कंसिक्वेंसेस में हम नगर निगम जबलपुर P1 का अवार्ड है, किस डेट का है? ये है 11/2/88 को ऑर्डर हुआ था मैडम, अवार्ड ये हुआ था मैडम। इसके कंसिक्वेंस में हम जो है रेगुलर हुए बाय द एनेक्सर P2। इसके द्वारा हमको रेगुलराइज कर दिया गया। Then what happened? यस मैडम। Then what happened? हाँ, इसके बाद हमें 92 में रेगुलराइज हो गए। हाँ, हम रेगुलर हो गए, लेकिन हमें सैलरी और ये नहीं दिया गया। तो हम इनके पीछे कंटिन्यू थे कि साहब हमें सैलरी दें, ये करें। तो इन्होंने हमारी जानकारी हमें नहीं दी, जिसके कारण हमको RTI लगाए तो इन्होंने रिजेक्ट कर दी। उसके बाद हम RTI में भोपाल तक गए, आयोग तक। आयोग ने हमारे पक्ष में आदेश किया, एनेक्सर P4 पेज 42। इन्होंने हमारी RTI इस आधार पर रिजेक्ट की कि साहब हमारे पास 19 वर्ष पुराना रिकॉर्ड नहीं है या इनके संबंध में रिकॉर्ड नहीं है। Since when you are not getting salary? Since when you are नहीं, हमें सैलरी नहीं मिली माइलॉर्ड तब से। P2 से ही नहीं मिली। हाँ, और इनका ये कहना है, ये इसके ऊपर इनके ऊपर 25,000 रुपये कॉस्ट भी लगी। 25,000 रुपये की कॉस्ट भी लगी। पेज नंबर 44 में ये दिख भी रहा है। What is your case? Firstly, my lord, my case is, my lord, that even if the best case scenario is to be seen, my lord, he says that he has, my lord, superannuated in the year 2003. The representation which has been submitted by him is, my lord, in the year 2021. Now, So far as pension is concerned, for pension there is no limitation. We have a totally different case, my lord. My lord, may kindly see one more reply, my lord. My lord, what we say, my lord, is that, my lord, he was regularized, that is an administrative declaration. My lord, after that, my lord, after the regularization, my lord, he was attached to a fire brigade department. My lord, on, my lord, 22/7/1993. That is the next R. Now, my lord, he did not join. When he did not join, my lord, notice was issued to him, my lord, on 23rd of August 1993. That you have to join, my lord, in the fire brigade department. No reply was filed by him, neither he appeared. Thereafter, my lord, again notice was issued to him. On 13/9/1993. Let's see the regularization order. P2. P2 11/92। He has been unavailable from the service for the period of 5 years. And So thereafter when he came back, he did not came back. In the year 1998, my lord, he was removed from service, my lord. where is that? My lord, that is, my lord, annexure R8. R8. Yes, my lord, that is the note sheet, my lord, and before that, my lord, charge sheet was also issued to him, my lord. He did not appear. Which page of your reply? Which page? My lord, that is page number 22. 22. And these facts, my lord, the charge sheet, the show cause notice, my lord, the dismissal has not been denied by him, my lord, in the rejoinder or in the writ petition. In the writ petition, my lord, all these things have not been, my lord, pleaded. In fact, in the rejoinder also, they have not rebutted all these things. Page number 22 is Dr. Bhatti, my lord. Page number 20 is the, my lord, notice which was issued, my lord. Thereafter, inspection was conducted on, my lord, by annexure R7. And, my lord, it was found out, my lord, that he is regularly being, my lord, what relief can be granted to you? You are terminated in the मालूम अगर इनका इन्हीं के, मैं अपने डॉक्यूमेंट पर बात नहीं करूंगा, केवल इन्हीं के मुझे टर्मिनेट करे होंगे तो कोई ऑर्डर पास करे होंगे जिसकी मैं अपील कर सकूं, कुछ कर सकूं। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट दिखा दें कि वो टर्मिनेशन लेटर कहाँ है। अब एनेक्सर P8 जो इन्होंने लगाया हैगा R8 पेज नंबर 22, इसको मैं पढ़ के बताना चाहूंगा। हेतु पत्र प्रेषित कर दिया जावे इस शर्त के साथ कि 7 दिनों के भीतर यदि प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत किया तो स्वयं सेवा समाप्त समझी जावे। कोई पत्र 7 दिन के अंदर जारी करना था, नहीं करे। उसके बाद उसी में नीचे लिखा हुआ है मस्टर से नाम हटाएं, 5 वर्ष से काम नहीं कर रहे हैं, इस कारण से स्वयं सेवा समाप्त मानी जाए। ये कुछ भी मान ले, उसके संबंध में डॉक्यूमेंट तो हमें टर्मिनेशन लेटर तो देंगे। वो टर्मिनेशन लेटर ये आज तक हमें नहीं दे पाए। But when you went,
to work. As per them, you are not working since 93. नहीं, हम वहां पे कंटिन्यू वर्क में थे। आप कब से अब इनका कहना ये है कि साहब हमने इनकी ये कॉन्ट्ररी चीजें आप कब से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बताइए ना। 90 जब से रेगुलर हुए उसके बाद ही से कर रहे हैं मैडम। बताइए आपके रिप्रेजेंटेशंस कहाँ हैं? इसी संबंध में तो मैडम हमने ये आरटीआई में जानकारी मांगे थे ना कि साहब हमको Your letters would be with you. Usually the usual conduct of a person who is working and not getting salary is to first represent, then file a case, or if he is somewhat illiterate, then he will come down on the road. Then he will give a threatening of Atmadaha. He will approach MP and HRC, National Human Rights Commission, if he will not approach the court. He was not so much aware to approach the court, जी। but he would do any of these things. He will approach the Human Rights Commission, he will approach the collector, he will approach the Prabhari Minister of the district. कुछ तो करेगा आदमी जी डेस्परेशन में। जी। तो हम कंटिन्यू उसमें इतना एजुकेटेड नहीं है कोर्ट तक आने के लिए, कुछ तो करेगा। मतलब मेरे इसमें ये देख लें, पिटीशन में ही मैंने ये लिखा हुआ है दैट और कुछ नहीं करेगा, धरना दे देगा। हाँ। तो करेगा वो, उसको जितनी as per his intellectual ability he would do something. जी। It cannot be believed that for 20 years you continued working and did nothing. नहीं तो हम कंटिन्यू इनके उसमें इलिटरेट है माय लॉर्ड, जो बार बार इनके पास जाता रहा है और दूसरी पिटीशन किसी इसमें लगी भी होंगी, मुझे अगर एक समय दें तो फिर मैं वो रिप्रेजेंटेशन भी दूंगा कि साहब इन्होंने क्या रिप्रेजेंटेशन दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा फॉल्ट तो केवल इनका ये है कि साहब मेरी सारी गलतियां हैं, तो मुझे टर्मिनेशन लेटर तो देंगे जिसके खिलाफ मैं कम से कम। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है बताइए? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1943 You completed the age of superannuation in 2000. अप्रोक्सीमेट 2003। समय 60 साल थे। हाँ, तो 2003 से पहले आपको रिप्रेजेंटेशन बता दीजिए। मैं So we can see that you are willing to work. 2003 के बाद अगर आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो दैट इज इमटेरियल। तो मुझे मतलब एक समय इसके लिए दे दें। मैं क्यों रिजॉइंडर आ गया आपके समय? रिजॉइंडर में तो प्लीड ही नहीं किया, they have not even pleaded that they were working or they have नहीं, हम कंटिन्यू इनके to approach the authority even otherwise. पिटीशन में प्लीड किया है। Petitioner- There is specific law for explaining the delay method that has not been explained. No, have he stated something that he is regularly attending the work, not being paid salary? Not been pleaded. और इनका ये जो ठीक है, मैं रिप्रेजेंटेशन के लिए अगर एक समय दे दें तो मैं वो भी देख के कर लेता हूँ। लेकिन अगर इनकी बातें अगर मान भी ली जाए कि साहब हम कंटिन्यू 5 साल एब्सेंट रहे, तो मैंने ये जो सैलरी स्लिप लगाई हुई है, ये किस सैलरी स्लिप, या तो मैं कंटिन्यू सर्विस में था, तो फिर ये जो चार्जशीट है ये जो दी गई है वो गलत दी गई हैं। सर्विस में रहते हुए मुझे चार्जशीट दी गई हैं। So 93 only, May 93, सब मई 93 की है। मई, जून, जुलाई, अगस्त। हाँ, और लास्ट में 98 की भी है ये वेतन वितरक पत्रक, फरवरी नहीं जुलाई जनवरी 1998। तो मतलब मैं कंटिन्यू सर्विस में रहूंगा। और इस चूंकि मैं इनके पास कंटिन्यू रिप्रेजेंट करता रहा, ये सैलरी मुझे नहीं दी गई, ये किसी और के द्वारा निकाली गई। तो इनके इसमें लिखा भी है, इनके एक उसमें किसी अनजान व्यक्ति के खिलाफ इन्होंने FIR भी फिर दर्ज कराई है कि साहब ये सैलरी किसके द्वारा निकाली गई है। ये आप तो काम नहीं कर रहे थे इसलिए। नहीं, काम तो हम कंटिन्यू है मैडम। डिफरेंस ऑफ सैलरी वगैरह हम ये इनसे मांगते रहे, इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए, तभी तो हम RTI में राज्य सूचना आयोग तक जाना पड़ा, तब भी वहां पे भी इन्होंने पेश नहीं कर पाए। और ये रिप्रेजेंटेशन 2021 में पिटीशन फाइल होने के बाद 2023 में ये बताते हैं, और सारे RTI में इन्होंने वहां तक कहा कि साहब इनके पास कोई दस्तावेज नहीं हमारे संबंध में। तो जब दस्तावेज 2016 तक कोई इनके पास नहीं थे, तो आज इनके पास अचानक से कहां से आ जाएंगे? इसमें नील है पेएबल जो 98 की आपने एक लगाई है सैलरी स्लिप, इसमें जितना सैलरी उतनी कटौती है, भुगतान की जाने वाली राशि नील, पेएबल अमाउंट 0। ये सैलरियां इट इज टू फार फेच्ड। लिखिए, बाय वे ऑफ दिस पिटीशन द पिटिशनर इज सीकिंग द फॉलोइंग रिलीफ्स।
Next, the case of the petitioner is that the petitioner was not paid salary for a long time, and though he attained the age of superannuation in January 2003, but still the petitioner has not been paid his pension since then. Point. It is further the case of petitioner that the petitioner had earlier moved an application before the municipal corporation seeking certain information as regards his services under the Right to Information Act. But when ultimately the said application was dealt with in compliance of order of appellate authority under RTI Act 2005, then the corporation informed the petitioner that the documents sought are almost 20 years old and are no longer available and are untraceable. Point. Therefore, the supply of the documents was refused to the petitioner. Point.